I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 3 science, that is water. You know, water is so precious for our life. Without water, the life is not at all possible on our earth. We cannot live without water. You know, we should always save water because we should save the water for the sustainable development for our future uses. So water has three states. Water exists in three states, that is solid, liquid and the gas. Let's begin with this lesson. In this lesson, we will read about states of water. क्या states होते हैं? Solid, liquid and gas. Second, water cycle. Third, water pollution. And the fourth one is conservation of water. Water को कैसे conserve कर सकते हैं? Self survey. Identify the activities and write these names. आपको identify करनी है activities को और उनके names लिखने हैं. That is drinking. First one is drinking. Second is bathing. That is because of water. We use water in bathing. That is washing clothes. And this is testing of water. Now, water is important for all living things. Water हर living thing के लिए important है. Human needs water, plants need water, animals needs water. हर living thing को water चाहिए. Without water, it is impossible to stay alive. Water के बिना ये बिल्कुल impossible है अगर हम जिंदा रह सके तो. So we have to take care and protect our water source like rivers, lakes, streams and oceans. तो हमें अपनी वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, ओशियन से हमें इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर क्या करता है? कवर करता है किसको? 3/4 को, हमारे अर्थ के सरफेस को. नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या स्टेट्स होते हैं? दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर एग्जिस्ट इन 3 states. Solid, that is ice. Liquid, that is water. Gas, that is steam. The states of water can be changed by cooling or heating it. States कैसे change हो सकते हैं? water के cooling करके हम solid में आ जाएगा, heat करके वो steam में आ जाएगा, gaseous form में आ जाएगा, liquid में आ जाएगा. So, for example, take some ice cubes in a bowl and leave them for some time. एक कुछ ice cubes लीजिए वो bowl में और उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए. What happens? The ice melts. जो ice होगी वो melt हो जाएगी and changes into water. Water के अंदर change हो जाएगी. This is called melting. इस process को कहते हैं melting कहते हैं. Now on next page. If we heat water till it boils, अगर हम water को heat करें जब तक वो boil हो रहा है, it form vapor. क्या form करता है? वो vapor form करता है. This is called evaporation. इसको क्या कहते हैं हम? Evaporation कहते हैं. If you hold a cold steel plate, अगर आप cold steel plate को पकड़ के रखोगे against the steam coming out of the pot, जो एक steam आ रही होती है pot से, अगर आप उसको वहाँ hold करके रखोगे, you will see water droplets on the plate. उस plate पे आपको बहुत सारी water droplets मिलेंगी. This is because of steam changes into water or cooling. किसमें change हो जाता है? वो water में change हो जाती है steam. It is called condensation. This process of water into steam of फिर उसके बाद वो जो water में आ जाती है वो steam, that is condensation. So we see that ice, water and water vapor are 3 forms of water. तो हमने देखा जो ice हो गई, water हो गया, वो water vapor हो गया. कितनी forms है? 3 forms है. किसकी? water की. Water changes from one form to another. Water किसी form, एक form से दूसरी form में change हो जाता है. कैसे? By heating और cooling. Heating और cooling की हेल्प से water forms में change हो जाता है. Experiment 1. Take a newspaper. You have to take a newspaper. Dip a long sheet of newspaper in a bowl half filled with water. और उसे बाउल में डिप कर दो. जो एक बाउल एक हाफ फिल्ड है. After some time, the paper come above the water.
लेवल विल ऑल्सो बी वेट, जो वो पेपर है वो ऊपर आ जाएगा वाटर लेवल से और वो वेट भी होगा। दिस स्टिकीनेस हेल्प वाटर टू बी पुल इटसेल्फ, जो उसका स्टिकीनेस होगा वो हेल्प करेगा वाटर को पुल अपनी तरफ पुल करने के लिए। इट ऑल्सो गिव्स द राउंड शेप टू वाटर ड्रॉप्स, को क्या करेगा, राउंड शेप दे देगा किसको, वाटर ड्रॉप्स को। सो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यू नो क्या है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर। Water is a universal solvent. Some solids like salt or sugar, liquids like milk and gases like oxygen dissolve in it, because वो सब dissolve हो जाता है, जैसे कि sugar, liquids जैसे कि milk and gases like milk, gases like oxygen, वो उसमें सब dissolve हो जाती है water में। एक्सपेरिमेंट 2, टेक अ स्पून ऑफ शुगर, आपको क्या लेनी है, स्पून लेनी है किसकी, शुगर की। पोर इट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें एक ग्लास ऑफ वाटर में पोर करो। स्टिर इट, उसे स्टिर करो। यू विल सी दैट शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, शुगर डिसॉल्व हो जाती है किसमें, वाटर में। एक्सपेरिमेंट 3, फिल अ प्लास्टिक आइसक्रीम कंटेनर, आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक के आइसक्रीम कंटेनर को फिल करना है विद पाइनएप्पल जूस और ऑरेंज जूस, उसमें या तो पाइनएप्पल जूस डाल दो या फिर ऑरेंज जूस डाल दो। इंसर्ट एन आइसक्रीम स्टिक ऑन टॉप एंड पुट इट इन द फ्रीजर, उसमें एक टॉप में एक आइसक्रीम स्टिक लगाओ और फ्रीजर के अंदर रख दो। व्हाट हैपन आफ्टर 3-4 आवर्स, क्या होगा 3-4 आवर्स के बाद, इट विल बिकम एन लाइक एन आइसक्रीम, इट विल गेट सॉलिड फॉर्म। नाउ एक्सपेरिमेंट 4, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक मिरर के सामने फ्रंट पे खड़े हुई, ब्रीथ आउट slowly about 10 times onto the mirror, 10 times मिरर पे ब्रीथ करो slowly। See the water droplets form on the mirror, आपको दिखेगा कि वो मिरर पे एक water droplets बन जाएंगी। The vapor that you breathe out is now becoming liquid water on the mirror, जो आपने breathe out करा water को, वेपर को, वो कहाँ पे लिक्विड बन गया, मिरर के ऊपर एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया वो वेपर। Now let's talk about water cycle. Water cycle क्या होती है? The form of water keeps changing in nature. जो एक water की form होती है हमारे nature में, वो change होती रहती है। पहले liquid होती है, then vapor evaporation होता है, then condensation होता है, then precipitation होता है। When the water present in oceans, seas, rivers, etc. gets heated due to the heat of the sun. जो भी हमारा water कहाँ present होता है, ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, एनीवेयर, वो हीट होता है किससे, सन से। इट इवेपोरेट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो वो इवेपोरेट होता है कि मतलब कि हवा में उड़ जाता है और किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन, इसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। दिस वाटर वेपर राइजेस अप एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर होता है ऊपर जाता है, फिर राइज अप होता है, फिर धीरे धीरे कूल डाउन होता है टू फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट, फिर वो क्या फॉर्म करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, उसको क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन कहते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉजेस रेनफॉल, जो ड्रॉपलेट्स होती है क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करती है, और जो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो फिर रेनफॉल हो जाती है। This is known as precipitation. This process is known as precipitation. Through this, the water bodies like ocean, seas, rivers gets back water. तो फिर क्या होता है, इसकी जो रेनफॉल होती है उसकी प्रोसेस की वजह से जो हमारी वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होकर वाटर ऊपर चल गया, हमारी ओशियंस को, सीज को, लेक्स को, वो सबको अपना वाटर वापस मिल जाता है। दिस होल साइकिल इज नोन एज वाटर साइकिल, जो ये साइकिल होती है पूरे इस प्रोसेस को कहते हैं दिस इज अ वाटर साइकिल। नाउ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, हम बहुत ज्यादा अपनी वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, लाइक बाय थ्रोइंग वेस्ट इन द रिवर्स, बाय वेस्टिंग सो मच ऑफ वाटर, बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमारा वाटर बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। Nowadays many of our rivers are turning dirty. आजकल हमारी बहुत सारी rivers dirty turn हो रही है because we wash our clothes in the rivers. क्योंकि हम अपने clothes को wash करते हैं कहाँ पे, rivers में। We bath in the rivers, हम rivers में bath करते हैं। We throw garbage into the rivers, हम garbage throw करते हैं rivers में।
and also dump harmful substances into the river. और कुछ harmful substances भी dump करते हैं कहाँ पे, अपनी rivers में. All these activities make the water unfit for drinking. जो ये activities होती है क्या करती है, हमारे river water को unfit बना देती है ड्रिंकिंग के लिए. इसमें बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं और अगर हम इसको पी लिया तो हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे. इट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. पॉल्यूटिंग वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन. उसमें कुछ भी हम वेस्ट डालते हैं जो अनफिट बनाता है उसको ड्रिंकिंग के लिए या किसी भी यूज के लिए, दैट इज वाटर पॉल्यूशन. By drinking polluted water, we can get disease like cholera, jaundice एंड टाइफाइड. अगर हम अपने वाटर को पॉल्यूट करेंगे उस समय क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज हो जाती है लाइक क्लोरिया, जॉन्डिस एंड टाइफाइड. दिस इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. Many aquatic plants and animals die because of water pollution. वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे aquatic plants भी खत्म हो जाते हैं, एनिमल्स भी डाई हो जाते हैं. It is our duty as good citizen to prevent water pollution. हमारी ड्यूटी है, हम गुड सिटीजन है तो वी शुड प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. हमें ज्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए वाटर का. इट विल ऑलवेज कॉज ग्रेट हार्म टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. अगर हम वाटर पॉल्यूशन करेंगे तो उससे ग्रेट हार्म किसको होगा, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, वाटर एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को भी. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. हाउ कैन वी सेव वाटर, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वी नीड टू कंजर्व वाटर because life will not be possible without water. हमें बहुत ज्यादा वाटर को कंजर्व करना चाहिए because लाइफ पॉसिबल ही नहीं है हमारे अर्थ पे वाटर के बिना. और हमारे पे बहुत कम सोर्सेज है वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की. डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन, टर्न ऑफ द टैप वेल आफ्टर यूज. आपको टर्न ऑफ कर देनी चाहिए टैप्स को जब यूज हो जाएगा. सेकेंड, यूज टब एंड अ मग टू हैव अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर. आपको क्या करना चाहिए, टब या फिर मग का यूज करना चाहिए बात करने के लिए इंस्टेड ऑफ शावर्स. थर्ड, यूज ओनली एज मच वाटर एज यू नीड. आपको उतना ही वाटर यूज करना चाहिए जितना आपको नीडेड हो. व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ को ब्रश करते टाइम. थर्ड, डू नॉट लीव द टैप्स रनिंग व्हाइल वॉशिंग डिशेस एंड क्लोथ्स. आपको टैप्स को रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए जब आप डिशेस को वॉश कर रहे हो या क्लोथ्स को वॉश कर रहे हो. And the last one, use washing machine that does not consume too much of water to wash clothes. आपको उन washing machines को use करना चाहिए जिसमें ज्यादा water वो consume ना करे. क्या करते टाइम, clothes को wash करते टाइम. Like fully automatic machines waste so much of water nowadays. Now quick brush up of this lesson. First one, water covers 3/4 of the earth's surface. water क्या करता है, cover करता है किसको, हमारे earth के 3/4 surface में water ही water है. Second, water is found in 3 forms: solid, liquid and gas. water कितनी forms में है, 3 forms में. that is solid, that is the ice form; liquid, that is the water form; and the gas, that is the steam form. Third, water can be changed into one form to another. water एक form से दूसरी form में change हो सकता है by heating or cooling. Fourth, the water cycle goes on in nature. हमारे nature में water cycle चलती रहती है. And the last one, water pollution is harmful for all living beings. हमारे हर living beings के लिए, humans के लिए, animals के लिए, plants के लिए, सब के लिए water pollution बहुत ज़्यादा harmful है. So we should not pollute water. We should always save water. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.